हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हमने लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर 8 तक हमने कंप्लीट किया था। अभी 14 या 15 चैप्टर है, तो आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Chapter number 9 is eligibility test. In this question, the chapter, you are given set of necessary qualification required for certain vacancies in job and promotion. मतलब एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो दिया होता है, along with biodata and few candidates who have applied for same post. You are required to match personal data of a person with eligibility requirement of job or promotion facility. मतलब यहाँ पर क्या करना है, along with the biodata of few candidates. यहाँ पर बायोडेटा दिया जाता है few candidates का, उनका बायोडेटा पढ़ के इस जॉब के एप्लीकेशन के लिए कौन सही है ये देखना है हमको. Systematic analysis of facts and figures reduces the chances of inaccuracy and ensures speedy decision making. The idea behind inclusion of this question in competition is test candidates' ability to use data and decision making. ये एग्जाम में क्यों होता है? ताकि जो हमें डेटा दिया है उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं और उससे हम जॉब कैसे देंगे, ये हमको देखना है. स्पीडी डिसीजन. Directions. Study of following form information carefully and answer the question given below. Following are the criteria for shortlisting candidates. मतलब ये लोग shortlist हुए हैं इंटरव्यू के लिए. ओके, so for the interview for management trainees in an organization. किसके लिए? Management trainees के लिए. Not less than 21 years and more than 28 years. Not less than 21 years. Less than 21 years and more than 28 years. And more than 28 years as on 1st November 2010. Have secured at least 60% marks in graduation. Have secured at least 60% marks in graduation. Then have secured at least 65% marks in preliminary selection examination. Selection examination जो preliminary है उसको 65% उतने मिलने चाहिए. Then have secured at least 55% marks in final selection exam. Be ready to join work immediately after interview. To join work immediately after interview. Okay. At 4, but has secured more than 75% marks in preliminary selection exam. His or her case is to be referred to Deputy General Manager. मतलब अगर 75% से ज्यादा सिलेक्शन एग्जाम में मार्क्स मिले तो डेप्यूटी जनरल को रेफर करेगा. ओके,
but has secured at least 65 marks in post graduation. 65 marks in PG. Post graduation भी उनका होना चाहिए. His or her is referred to general manager. To general manager. Okay, in each of the question given below, the information of each candidate, you have to study the information provided with reference to the condition given above and decide whether the candidate is to be called for interview for some other course of action is to be taken. You are not assume anything other than information provided, okay? In each question. All these cases are given you in 1st November 10. Now read the information provided in each question and decide the courses of action which are regarded to each candidate and mark your answer as it is. मतलब क्या बोला उन्होंने, ये इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने, राइट? ये सारी इंफॉर्मेशन दी है और कैंडिडेट्स का बायोडेटा दिया है. तो इस इंफॉर्मेशन के चलते हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा कि क्या देखना है कि इस इंफॉर्मेशन से हमें सिलेक्शन अच्छा करना है और इंफॉर्मेशन जो दी है वही अज्यूम करनी है, कोई एक्स्ट्रा अज्यूम नहीं करनी. तो अब उन्होंने नीचे दिया हुआ हम करेंगे. ओके गाइस, ओके. तो फर्स्ट का दिया है, इफ द कैंडिडेट इज टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, तो क्या करें? इफ कैंडिडेट विल नॉट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, हमें ये सब देखना है कि किसको बुलाना है इंटरव्यू के लिए, किसको नहीं बुलाना है. देन इफ डाटा प्रोवाइडेड इज नॉट सफिशिएंट, मतलब किसी ने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये सब देखना है. इफ इन केस ऑफ द इट इज रेफर टू डेप्यूटी और जनरल मैनेजर, मतलब उसका बायोडाटा बहुत ज्यादा है तो हमें किसको देना है ये भी हमने देखा, राइट? तो ये सब हमें देखकर ही, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद ही हमें किसी को जॉब देनी है या इंटरव्यू के लिए कॉल करना है. ओके, सो लेट्स सी. एग्जांपल 1. नीलम श्रीवास्तवा हैज secured 75% marks in preliminary selection examination. Okay, she was 22 years old as on 5th December 2006. She secured 65% and 60 marks in final selection examination and in graduation respectively. She is ready to join immediately after interview. अब देखते हैं कि कंडीशंस कैसे कौन कौन ये करते हैं. हम नाम लिखेंगे. मैंने बायोडेटा पढ़ दिया है आपके पास. ओके, तो मैंने बायोडेटा जो पढ़ा आपने ध्यान से सुना, तो हम कंडीशन 1 2 3 4 5 देखेंगे. कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 4 और 5. ओके, सो नेम क्या है? पहला नीलम श्रीवास्तवा. फर्स्ट इनिशियली लिखूंगी. ओके, फर्स्ट नीलम हैज सिक्योर्ड 75 मार्क्स. पहली बात तो not less than 21 years and more than 28 years as on 1st November 2010. नीलम, अब उन्होंने क्या बोला? ये कंडीशन है, राइट? ये क्या है? कंडीशन है. उसके बाद नीलम श्रीवास्तव हैज सिक्योर्ड 75% मार्क्स इन प्रिलिमिनरी सिलेक्शन एग्जामिनेशन. कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं? 75% मार्क्स. तो कंडीशन, पहली कंडीशन तो उन्होंने फुलफिल की. क्या? कौन सी कंडीशन गाइस? कि वो 21 साल से बड़ी है, राइट? क्योंकि मैंने अभी पढ़ा था, नीलम श्रीवास्तवा secured 75% marks in preliminary selection examination and she was 22 years old as on 5th December 2006. Okay, she secured 65% and 60% marks in final examination. तो यहाँ पे दिया कि 75% मार्क्स भी सिक्योर हुए, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. ये कौन सी कंडीशन है? 1 2 3, लास्ट 4th कंडीशन. ओके, ये बोथ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो इज शी क्वालिफाइड? यस, शी इज क्वालिफाइड. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. John DeCosta has secured 54 marks in final selection examination. He has secured 75% marks each in graduation and preliminary examination. He is ready to join work immediately after interview. He was 22 years old as on 4th August 2007.
इन्होंने भी देखिए सारे कंडीशंस पूरे किए। एक तो वो 54 मार्क्स लेके आए, तो उन्होंने क्या बोला है कितने मार्क्स होने चाहिए ज्यादा, 55, कितने मार्क्स होने चाहिए गाइस, 55 से ज्यादा होने चाहिए। तो क्या कंडीशन उन्होंने कंप्लीट किया है, नहीं किया है, पर एज की कंडीशन तो कंप्लीट की है। सो एक कंडीशन नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, मार्क्स की कंडीशन। ओके, जॉन डी कोस्टा। बाकी कंडीशंस क्या थी, he secured 75% marks in graduation, वो भी कंप्लीट की, और he is ready to join as immediately as possible, yes, ओके। जल्दी मतलब वो भी कंडीशन थी कि उन्होंने जल्द से जल्द ज्वाइन होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट जॉन के बाद है सुभाष मल्होत्रा, was 26-year-old as on September 2008. He secured 75% marks in each graduation. अब देखिए वो 2008 की वक्त 26 साल का था। उन्होंने क्या बोला है, कब तक वो अब 21 साल का होना चाहिए, 1 नवंबर 2010 तक, 1 नवंबर 2010 तक वो 21 साल का होना चाहिए। पर वो हुआ कब है, 21 साल का सुभाष 2008 में हुआ है, मतलब पहले हुआ है, राइट। सो ये बड़ा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकेंड कंडीशन क्या है, 75% मार्क्स मिले उनको, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ग्रेजुएशन में। फिर ही इज रेडी टू ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर इंटरव्यू, ये दो कंडीशंस हो गई, पर ये नहीं हुई, सो ही इज नॉट एलिजिबल। दिस बोथ आर एलिजिबल। हु इज मोर एलिजिबल, नीलम। सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ओके, होप अंडरस्टूड। तो ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं गाइस, हमने चैप्टर नंबर 9 क्या किया, एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब क्या देखा कि कौन कितना एलिजिबल है उस जॉब के लिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तब आपको सब कुछ डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 चैप्टर 10 किसका है, तो सीरीज का है। इन दिस चैप्टर वी विल डील विद क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ सीरीज। सीरीज मतलब होते हैं ना ऐसे, फिर उसमें डॉट, ऐसे सीरीज को कंप्लीट करने जो क्वेश्चन आते हैं ना हमारे एग्जाम में, वो देखने वाले हैं। You are expected to have clear vision of different movements and addition, deletion in a figure's rotation. This type of problem series consists of 4 or 5 figures forming a set of problem figures solved by 4 or 5 figures forming the set of answer figures. The 4 and 5 consecutive problem figures form a definite sequence, and you will be required to select one correct figure from set of answers figures which will continue the same sequence correctly. Okay, समझ में आ गया guys? When body rotates in the direction of hands of clock, the movement is known as clockwise movement. मतलब कोई चीज अगर ऐसी घूम रही है, कैसी, ऐसी इस डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घूमना, और अगर वो ऐसे घूम रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, होप अंडरस्टैंड। डिजाइन और एलिमेंट, स्मॉल पार्ट्स प्रेजेंट इन अ फिगर आर कॉल्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट मतलब क्या, ये फिगर है, उसके अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम 1 के फिगर दिए और उसका आंसर क्या होगा हमें ढूंढना है। ओके, लेट्स सी नाउ, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं।
जस्ट ड्रॉ करेंगे। ओके, ये एक पिन हो गई, फिर ये दो पिन्स हो गए, ये तीन पिन्स हो गए, चार, और ये पांच। अब इसका आंसर क्या होगा? इन दिस स्टेप a pin is added on the left hand of existing pin। बराबर, लेफ्ट हैंड को ऐड होता गया है, ये वही रहा है, देखिए ये इससे उसके लेफ्ट साइड पर पिन्स ऐड होते गए, राइट। द हेड ऑफ द पिन इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू एडजेसेंट पिन। एडजेसेंट पिन के नीचे, मतलब इसके पहले ऐड होते गए पिन्स, और उसके हेड नीचे ऊपर ऐसे हो, तो इसके आगे क्या होगा? 6 पिन्स आएंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6। ये कहला कैसा है? ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो फिर आंसर क्या आएगा? दिस विल बी द ऑप्शन। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रॉब्लम फिगर्स। अब देखें, आंसर क्या होगा इसका? अब इस फिगर में आपको कुछ भी साम्य नहीं लग रहा है, राइट। The first two symbols in anti-clockwise direction interchanges their position, while third symbol moves one step anti-clockwise as is replaced by new one in each step। मतलब क्या हो रहा है? देखिए, the first two symbols in anti-clockwise direction, first two symbols in anti-clockwise direction, देखिए anti-clockwise direction में वो चले गए, मतलब ये और ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये यहाँ आया, इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंटरचेंजेस देयर पोजीशन, क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज में उन्होंने अपनी पोजीशंस बदल लिए, देखिए। ओके, देयर position while the third symbol moves one step anti-clockwise replaced by new one each step। और ये क्या हो गया? इधर आया और एक नया उन्होंने सिंबल, मतलब एलिमेंट लिया। क्या हुआ समझ में आ रहा है? ये और ये एक आपस में बदल गए, राइट। मतलब ये यहाँ आया और ये यहाँ गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ आया और अपना शेप बदल लिया। ओके, आंसर क्या आएगा बताइए गाइस? क्या आएगा गाइस? यस, राइट, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन सी क्या है? ये स्टार आया, ट्रायंगल, और ये इक्वल टू साइन। क्यों? ये और ये आपस में बदल गए, राइट, बदल गए, और ये यहाँ पर आएगा और अब कोई अगला फिगर आएगा, मतलब क्या आया? स्टार आया। तो आंसर विल बी दिस वन। अंडरस्टूड गाइस? ऐसे लॉजिक्स लगाने हैं हमको। फिर एग्जांपल नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है? ऐसा दिया है, फिर
और फिर ये ऐसी लाइन मुड़ गई। ओके, इसका आंसर इसके आगे क्या आएगा देखते हैं, चले। एग्जाम्पल 3 में क्या हुआ है, इन फर्स्ट स्टेप द लोअर मोस्ट लाइन सेगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू कर्व। बराबर, यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 5 लाइनें थे, लास्ट वाली लाइन क्या हो गई, कर्व, मुड़प गई, राइट। इन द सेकेंड स्टेप द सेकेंड लाइन सेगमेंट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड, मतलब यहाँ पर भी ये मुड़प गई, बराबर, इनटू second line segment also gets converted into curve and an existing curve is invented। क्या हो गया, existing curve क्या हो गया, invent हो गया, right। मतलब ऐसे कर्व आते गए, देखिए मतलब क्या हुआ, पहले 5वें नंबर को कर्व आ गया, फिर चौथे नंबर को कर्व आ गया, तीसरे नंबर को कर्व आ गया, दूसरे नंबर को कर्व आ गया। अब आंसर ऑफ कोर्स क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, पहले कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसा, ये आएगा आंसर। ओके, होप अंडरस्टूड। देन एग्जांपल 4, अब क्या दिया है, ऐसे और सर्कल, फिर ऐसे यहाँ पे और सर्कल, फिर ये ऐसे और सर्कल। अब इसका आगे का आंसर क्या आएगा, देखिए पहले ऊपर था ट्रायंगल, as we move up from figure 2 line segment move 1 step in anti-clockwise direction and 1 line segment is added। बराबर, अब ये क्या हुआ, ये ऐसा था, ये हो गया ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज में देखिए कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसा था, क्लॉकवाइज मैंने कैसे बोला, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, मतलब ये सेगमेंट हो गया मूव ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, और एक ऐड हो गया, देखिए ये, मतलब इधर का ट्रायंगल इधर ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट टाइम, और एक सेगमेंट ऐड हो गया। इसका भी वैसे ही हुआ है, देखिए ये ऐसे आ गया, और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में मूव हो गया, राइट। मतलब समझ रहे हो क्या गाइस, देखिए ये फिगर है 1 2 3 और 4, कैसा था फिर पहला फिगर, तो सिर्फ ऐसा था, राइट। तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम एंटी क्लॉकवाइज मूव हो गया, मतलब यहाँ पर आ गया, और एक सेगमेंट ऐड हो गया, राइट। नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ है, तो ऐसा फिगर है, और कन्वर्ट कैसे हो गया, मतलब अब ये कैसे मूव हुआ है। अब उसके बाद बोला है, while we move from figure 2 to 3, one line segment is deleted. Similar changes and movement occur in subsequent figures. Okay? समझ रहे हो क्या गाइस। अब यहाँ क्या हुआ, ये आ गया, ये डिलीट हो गया, ये वाला सेगमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज में मूव हुआ था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। ओके, और क्या हुआ, और एक सेगमेंट वो ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में ही घूम रहा है, उसमें ऐड भी हो गया, डिलीट भी हो गया, और फिर से यहाँ पर ऐड हो गया। समझ रहे हैं, फिर से समझाते हैं, आई थिंक किसी को समझ में नहीं आया। ये है ट्रायंगल हमारा, देखिए ये सर्कल, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ, और इसको एक सेगमेंट ऐड हो गया, बराबर। फिर क्या हुआ, ये तो मूव कर ही रहा है, कौन सा, ये डिलीट हो गया, मतलब ये हो गया ऐसे, ये हो गया डिलीट। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, नेक्स्ट फिगर में गाइस क्या हो गया, ये और यहाँ पर ऐसे एंटी क्लॉक में मूव हुआ, ओके, और यहाँ पर ऐड हो गया। तो अब क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज में तो ये मूव हो ही रहा है, पर ऐड डिलीट हो गया,
और फिर ऐड हो गया और फिर डिलीट होगा, मतलब नेक्स्ट फिगर कैसे आएगी, डिलीट होके एंटी क्लॉकवाइज में अब में मूव होके ये आएगी हमारी फिगर। समझ में आया? समझ में आ गया। अब थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं इस तरह के। देखिए आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स बस हो जाएंगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट अंदाज तो मिल गया होगा, राइट? क्लॉकवाइज मतलब कैसे, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, और हमारे ये चैप्टर खत्म हो गया। अब देखेंगे हम मिरर इफेक्ट, चैप्टर नंबर मिरर इफेक्ट। मिरर इफेक्ट मतलब उल्टा। The figure obtained by putting mirror in front of real figure is known as mirror image. The reflection of object in mirror is called mirror image. मतलब ये एग्जाम्पल मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन दिखता है इसको बोलते हैं मिरर इमेज, और ये है रियल इमेज। ओके, when we combine both the figures we get a new figure in shape. Okay, मतलब for example it is obtained by inverting an object literally. If we combine original figure and mirror image together, they form symmetric. Now we look at these figures, right? ये 1 और ये 2. If we combine both the figures, we get a new figure in a shape. मतलब ये क्या है, ओरिजिनल और ये मिरर। अगर हम दोनों ने इसको जुड़ा दिया तो क्या बन जाएगा, हार्ट। ओके, take a mirror and place in both of vertical dotted lines running through middle of the shape. You will see the half figures on left together with the image in mirror give the complete figure of heart. So this heart shape is said to have reflection symmetry, and reflection takes place from vertical line of symmetry at middle. Okay guys, तो मिरर इमेजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स के मिरर इमेज कैसे आते हैं, आपने देखा तो जरूर होगा। ए कैसे आता है, बी, राइट, सी, डी। आप एक काम कीजिएगा, ए बी सी डी ऐसे लीजिए और मिरर के सामने देखिए, मिरर इमेज कैसे आएंगे, ए बी सी डी ऐसे उल्टे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मिरर में रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट गाइस? सो सी लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस based on mirror image. Type 1, letter or number image. Here we are given a single letter combination of letter or words or numbers. We have to find their mirror image out of a given alternatives. मतलब क्या करना है कि वो देंगे और हमको उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढ के निकालने हैं। ओके, मिरर इमेज कैसे बनेगी उनकी, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, in each of the following questions you are given a combination of alphabets and numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative। मतलब फन को हम कैसे लिखेंगे, ये होता है हमारा नॉर्मल फन, पर मिरर इमेज में वो कैसा आएगा, राइट? राइट गाइस, कैसे आएगा, जब हम मिरर को ज्वाइन करेंगे तब वो कैसे आएगा, इफ वी पुट मिरर इन फ्रंट ऑफ वर्ड वी गेट फॉलोइंग, उल्टा आएगा इसका। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये फन के सामने हमने ताना मिरर, तो पहले आएगा एन, एन कैसे आएगा, उल्टा आएगा, राइट?
सॉरी, एन उल्टा कैसे निकालते मैं भूल गई, 2 मिनट। ऐसा आएगा राइट, मतलब एक्चुअल में ऐसे आता है, पर मिरर इमेज कैसे आएगा, ये आएगा। तो ऑप्शन कैसे लिखेंगे, ऐसा वाला, NUF, नफ। ओके, उल्टा वाला, समझ रहे। अब ये वर्ड है पैम्पर। इसका मिरर इफेक्ट कैसे आएगा, इसके सामने हमने टाना मिरर, ये आ गया RETMAP। ऐसा अगर ऑप्शन दिखेगा आपको तो ये लिखना है, मतलब मिरर इफेक्ट का क्वेश्चंस अगर आ गए तो कैसे लिखना है, वो समझ में आ रहे हैं। ओके, फिर आ सकते हैं नंबर्स के। वो पूछ सकते हैं कि अगर 2 3 4 5 ऐसा है तो मिरर इमेज में कैसा आएगा, कैसा आएगा, 5 4 4 कैसा आएगा, उल्टा देखिए, 4 3 2। ओके, समझ रहे गाइस, नंबर्स ऐसा आएगा, ठीक है। फिर and which types of question we deal with figures define geometrical shapes। मतलब अब ज्योमेट्रिकल शेप्स के भी हम पूछ सकते हैं, या फिर क्लॉक के पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है क्लॉक, इसके बजे है 3, सॉरी 12 बजे है, समझ लो। इसकी मिरर इमेज हमको ढूंढनी है, ऐसे वो बोल सकते हैं। तो इसकी मिरर इमेज कैसी आएंगी गाइस, ऑब्जेक्ट्स की भी मिरर इफेक्ट वो पूछ सकते हैं, राइट। ओके, ऐसी आएगी। होप समझ में आ रहा है आपको। फिर और एक फिगर दी है ऐसी, एग्जाम्पल 6, देखिए इसकी मिरर इमेज हमें ढूंढनी है। अब इसकी मिरर इफेक्ट ढूंढिए, ऐसा बोला है, तो इसकी मिरर इफेक्ट कैसी आएगी। आप एक काम कीजिए, पहले ऑप्शन देखने से पहले क्या करना है, तो पहले क्या करोगे आप, बोलिए। पहले ये फिगर देखोगे और उसका मिरर इफेक्ट बनाओगे, और फिर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या देखोगे, और उसका आंसर लिख दोगे। ओके, क्योंकि आपको ऑप्शंस देखने के बाद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया मिरर इफेक्ट। आप देखिए, इसका देखते हैं हम। ये फिगर दी है, इसके अंदर ट्रायंगल बनाया है, ओके ऐसा ट्रायंगल बना है, और ये फुल साइड डार्क किया है, और इसको डॉटेड किए। इसकी मिरर इमेज कैसी होगी गाइस, हाउ विल बी इट्स मिरर इमेज, कैसी होगी मिरर इमेज। डॉटेड लाइन पहले दिखेगी, राइट। देखिए ट्रायंगल का तो ट्रायंगल ही दिखेगा, राइट। क्या दिखेगी, डॉटेड लाइन दिखेगी पहले, इसके पीछे बाद ये दिखेगा। ओके, ये दिस विल बी मिरर इमेज। उसके बाद इसके देखते हैं कि क्या मैंने क्या बोला आपको, ऑप्शंस नहीं देखना है, पहले देखना है कि हम इसको ड्रॉ करके देंगे। ओके, मतलब वो ड्रॉ ही किए होंगे ऐसे फिगर्स, पर आपको खुद से ड्रॉ करना है पहले, फिर ऑप्शंस दिखेगा।
और फिर वैसा ऑप्शन दिखा तो आंसर लिख लीजिए। ओके गाइस, अब इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है। लेट्स सी बेटा, how will be the mirror image guys? कैसी होगी मिरर इमेज? होप समझ में आ रहा है, आया था समझ में गाइस? और एक मिरर इमेज देखते हैं। सिंपली मिरर इमेज मतलब क्या, उसका उल्टा, बराबर उल्टा होता है। ओके अब इसका मिरर इमेज बनाते हैं। ट्रायंगल तो वैसा का वैसा रहेगा, फिर ये ट्रायंगल आएगा, उसके अंदर ये छोटा ट्रायंगल, फिर ये कैसे आएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा गाइस, कैसे आएगा, कैसे आएगा? ऊपर ही जाएगा, नीचे का क्या संबंध? ओके, आई होप समझ में आ रहा है। और ये जाएगा बाहर। ओके, होप समझ में आ गया। ऊपर का तो ऊपर ही जाएगा ना, ये पूरा का पूरा तो उल्टा नहीं होता गाइस, समझ रहे हो ना? अब इसका देखते हैं, इसका मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज कैसा होगा? बराबर, समझ में आ गया था गाइस? ओके, इसके पत्ते ऊपर आएंगे राइट। अब देखिए, ये आएगा ऐसे मिरर इमेज। ओके, मतलब ये मोटा इधर आएगा और ये पतला उधर जाएगा, उल्टी आती है ना, बराबर, इमेज उल्टी आती है। अब उन्होंने दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फिर बोलिएगा गाइस। ओके, मिरर इमेज इसकी कैसी होगी? इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? आप मिरर इमेज इधर की नहीं बोलिए, नीचे की बोलिए। कैसी बोलिए? नीचे की मिरर इमेज बोलिए, तो कैसी आएगी? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए इसमें। ओके, अंडरस्टूड गाइस? और एक या बस हो गया? आई थिंक बस हो जाएगा, पर फिर भी लाइंस का देखते हैं।
इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी? मिरर इमेज, यही अगर ये डाउनवर्ड की होती तो भी कैसे आई थी? समझ रहे हो? कहाँ की मिरर इमेज पूछिए, ये देखना है हमें। ओके, सो होप आपको मिरर इमेज समझ में आ गया होगा। समझ आ गया ना? अब नेक्स्ट चैप्टर 15, कौन सा? क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी इसके लिए अभी बस हो गया ये। ओके